भारत की अध्यक्षता में G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह G20 वित्त ट्रैक के तहत महत्वपूर्ण कार्यधाराओं में से एक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित रखता है। इसका उद्देश्य कमजोर देशों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना भी होगा। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक 24-25 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में होने वाली है। Chandigarh gears up to host the G20 International Financial Architecture Working Group meeting. It's a great opportunity for all of us to host such an august meeting. The basic purpose of this press meeting today is to just give you the brief inputs regarding this two-day program. What kind of interaction we will have with you, some basic details regarding these meetings. And as this press conference and this meeting is primarily about the G20 meeting, so my request to all my media friends would be, please restrict yourself only to the questions relating to G20 and nothing else, because that is not really our mandate. We are here to discuss what is going to happen in the next 2 days. शुरुआत में मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरी कोलीग अनु मथाइस, इकोनॉमिक एडवाइज़र, और हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं। आप दोनों लोग मिलके इनपुट्स देंगे रिगार्डिंग दिस 2 days press briefing, these 2 days meeting. Once you have got the inputs, the initial inputs, then the floor will be open for the question answer segment. When we will be starting the question answer segment, my request will be that whoever wants to put up a question, please raise your hands, introduce your organization, and ideally we should have one question from the print and one from the electronic, so that each one of you gets covered in a balanced way. So now I'll open the floor and I'll request my colleague Anu Mathas, Economic Advisor, Ministry of Finance, to give you the basic inputs. The International Financial Architecture Working Group. So ये जो G20 है, इसमें है 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, जो इनके मेंबर्स करीब 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ओवर 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड और 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंप्राइज हैं इस G20 ग्रुपिंग में. और this grouping plays an important role in shaping and strengthening global financial architecture and governance on major international economic issues. So this group originated in response to a crisis, the Asian financial crisis. At that time when it was formed, it was a grouping of the finance ministers and central bank governors of these countries that comprise the G20. Then in 2008, when there was a global financial crisis, then it was elevated to summit level. So that means that the heads of state of these countries also began to meet every year. So the G20 presidency is now with India. So we took over from Indonesia last year, and from 1st December we assumed the presidency. You would have seen the President of Indonesia handing over the presidency of the G20 to Honorable Prime Minister Modi ji at the Bali summit last year. So from 1st December, India has the presidency of the G20 till 30th November. Now we represent the Ministry of Finance handles something called the finance track of the G20, and because there are many working groups in the G20 divided into 2 parts. One part is called Sherpa track, and the word Sherpa comes from the Nepali word Sherpa, who assists mountaineers in mountain climbing. So it's come just from that, because the Sherpa assists the leader of the country. So that track is handled by the Ministry of External Affairs and a number of ministries like agriculture, health, electronics, and so on. Now, the Ministry of Finance handles the finance track of this of G20, and in the finance track we have 8 working groups and 8 work streams and 5 working groups. So in Chandigarh on 30th and 31st, we have the first meeting of the International Financial Architecture Working Group, and as its name suggests, this International Financial Architecture Working Group it deals with the
global financial architecture, and it particularly deals with how to strengthen the crisis response in times of crisis. जैसे जब पैंडेमिक हुआ था तो सबसे गरीब देशों को किस तरह से और ज़्यादा सपोर्ट दिया जाए, and so it is basically a crisis response, how to strengthen global financial architecture to respond to crisis. So G20 जैसा कि मेरे कलीग ने बताया, उसके बारे में बताया, उसके अंदर अलग अलग वर्क स्ट्रीम और जो वर्किंग ग्रुप्स हैं उसके बारे में बताया, उसके काम और उसके उद्देश्य क्या है उसके बारे में बताया। लेकिन G20 जैसे किसी भी बड़े इवेंट का एजेंडा सिर्फ मीटिंग नहीं होता। ऐसे किसी भी बड़े इवेंट का एजेंडा सिर्फ दुनिया के नुमाइंदों को एक जगह बुलाकर बिठाना नहीं होता, बल्कि उस देश के इतिहास की, विरासत की, खान पान की, सांस्कृतिक उपलब्धियों की, समाज की, इन तमाम का भी एक परिचय देना भी लक्ष्य होता है, ताकि जब वो यहाँ से जाएं तो इस देश के बारे में उनकी जानकारी बढ़े और इस देश का जो गौरवशाली इतिहास है या जो गौरवशाली परंपरा है उसके बारे में वो जान कर जाए। तो G20 की मीटिंग्स जैसा आपको पता है पूरे साल भर चलेगी और देश के अलग अलग हिस्सों में शेड्यूल हुई है, ताकि पूरे हिंदुस्तान की, इतना बड़ा मुल्क है और इतनी इसकी विविधता है, उसकी एक जानकारी सारे जो भी लोग आते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने अलग अलग मुल्कों से उनको मिल सके। और जब फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पे मीटिंग वेन्यू तय करने की बात आई तो एक ही वेन्यू इसके लिए था कि फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के लिए वेन्यू वो होना चाहिए जो आर्किटेक्चरल मार्वल हो, और सिटी ब्यूटीफुल को छोड़कर हिंदुस्तान में ऐसा कोई वेन्यू नहीं था जो आर्किटेक्चर के लिहाज से पूरी दुनिया में अपना एक स्थान रखता है। तो ये जो एक तमगा है सिटी ब्यूटीफुल का, इसको हम कोशिश करेंगे कि अगले 2-3 दिनों में उनसे जो डेलीगेट्स हमारे आ रहे हैं उनका इससे परिचय कराया जाए। इसका इतिहास क्या है, इसके आसपास का जो एक हमारा उत्तर भारतीय परिवेश है उसका खान पान क्या है, उसके खान पान की विविधता क्या है, वो हम कोशिश कर रहे हैं उनको अपने जो हमने उनके लिए खास खान पान की व्यवस्था की है उसके द्वारा बतलाने की। जो यहाँ के आर्ट और कल्चरल फॉर्म है उसको बतलाने का प्रयास किया जा रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा। एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम आज भी रखा गया है, एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम कल रखा गया है सुखना पर, तो इसके द्वारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक पोलो मैच जो आज चंडीगढ़ प्रो क्लब के द्वारा कराया जा रहा है उसमें उनकी शिरकत करवाई जा रही है, ताकि वो इस गेम को, जो हिंदुस्तान की ईजाद है, इस गेम को देख सकें, समझ सकें और इसका आनंद उठा सकें। कल सुखना लेक पर एक गाला इवेंट का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जहां पर उनको हम चंडीगढ़ की खूबसूरती का नज़ारा करा सकें, और चंडीगढ़ की खूबसूरती का नज़ारा जो सुखना से मिलता है मेरे ख्याल से आप सब उससे वाकिफ हैं। इसके अलावा अगर चंडीगढ़ हम ला रहे हैं दुनिया के तमाम लोगों को, तो कोई भी विजिट रॉक गार्डन के बगैर अधूरी है, तो हम रॉक गार्डन भी इनको ले जा रहे हैं ताकि वो देख सकें। आज पूरी दुनिया में एक मूवमेंट सा चला है रिसाइकल, पूरी दुनिया में मूवमेंट है ग्रीन, पूरी दुनिया में मूवमेंट है कैसे हम रिसोर्सेज के कम इस्तेमाल से ज़्यादा काम कर सकते हैं। और चंडीगढ़ का जो ये रॉक गार्डन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो तब से एग्जाम्पल है जब से ये बातें इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में, डेवलपमेंट की टर्मिनोलॉजी में नहीं आई थी, तो वो दिखाने का प्रयास है। और अंत इसका हम 1 तारीख को करेंगे जो इस रीजन का विरासत है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, जो हमारे त्याग की, बलिदान की याद दिलाता है, विरासत खालसा। हम विरासत खालसा इन सबको ले जाकर उसके दर्शन करवाएंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि अगले 2 से 3 दिनों में हिंदुस्तान, खासकर उत्तर भारत जिसको हम कहते हैं, उसकी जो गौरवशाली परंपरा है उससे इनका परिचय करवाया जाए। धन्यवाद।